Hello, dear friends. I'm here today to do a very wonderful story by Madam Catherine Mansfield, and the name of this story is The Little Girl. This story is taken from our book Bihayu, and friends, as you know, that since 1.5 months we have been studying we have been learning several short stories, several lessons, and some poems. But believe me, this is one of the best stories I have ever read uh, in our several CBSE books. This story uh, is related with a very tender relationship between a father and a daughter. So, before we hit the story, let us have some short discussion, little discussion regarding the writer of the story, Madam Catherine Mansfield, belonged to, uh, you can say, a very modern writer and a poet. So, this book is ours, Behave, and the little girl. So this is the little girl, and the name of this little girl is Kezia in our story. So Catherine Mansfield. So Catherine Mansfield Murray, she was born in 1888 and was died in 9th January 1923. She was a prominent New Zealand modernist, short story writer, and poet who was born and brought up in a colonial New Zealand and wrote under the pen name Catherine Mansfield. At the age of 19, she left New Zealand and settled in England, where she became a friend uh, of writers such as D.H. Lawrence and Virginia Woolf. So Mansfield was diagnosed with tuberculosis in 1917, and this disease claimed her life at the age of 34. And in a very short span of life, Catherine Mansfield had written several short stories, very nice poems, and this is one of her best stories, uh, The Little Girl. Now, introduction of the story. Now, the title of the story refers to the main character that we will come across, the little girl named Kezia. The theme of the story is the relationship between children and their parents, and the writer, Catherine Mansfield, wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. Although, when children are small, when they are young, they do not feel that their parents love them because their parents are strict, and many actions of the parents seems seem unjustified. But as children grow up, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. The parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for the children. And this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. Very wonderful introduction you can see here, dear friends. And I would like to add something more, that you don't think that the love of the parents, you would always see, because it is not superficial.
it is not artificial, it is innate and natural. It is as sublime as God's love. So, we can say that we cannot test or we cannot even judge the parents' love for their children. So, this wonderful picture I have taken it from you from internet for you, dear friends. This wonderful picture may very delicately indicate what we are going to study in this lesson. Furthermore, the little girl along with her father. Now we directly hit the lesson. This is the book part, you see, textbook part, and we will directly we will directly go into the reading. Okay. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. राइटर यहाँ पर यह बोलना चाह रही है कि हमारे बचपन में ऐसी कई सारी एक्शंस हमारे पेरेंट्स की होती है जो हमें अपसेट कर सकती है, जिनसे हमें बुरा लग सकता है क्योंकि हम बड़े नासमझ उस समय होते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, अडल्सेंस एज से हम थोड़ा यंग एज थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं उम्र में, तब उनके एक्शंस को हम समझने लगते हैं और हमको लगता है कि नहीं वो जो कुछ भी उस समय वो करते थे, डांटते थे हमको, शायद कोई चीज़ करने से मना कर देते थे या फिर एक आध समय मार देते थे, तो वो एक्शंस जो उनकी है वो हमारे हमारे लिए बेनिफिशियली थी. This story about a little girl whose feelings of her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. देखिए क्या बोल रही है कैथरीन मैन्सफील्ड कि केजिया की जो स्टोरी है, ये स्टोरी इसीलिए ये यूनिवर्सल स्टोरी है. केजिया की ये स्टोरी, लिटिल गर्ल की ये स्टोरी, इट विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. मीन्स हर घर में आपको एक केजिया नज़र आएगी, हर घर में आपको एक रिप्रेजेंटेटिव चाइल्ड नज़र आएगा जो अपने पेरेंट्स से खौफ खाता है, अपने पेरेंट्स से जो डरता है, अपने पेरेंट्स के एक्शंस उसको सही नहीं लगती. मान लीजिए हमारे 3 भाई है, 4 भाई है, हम मान लीजिए 2 भाई है, 2 सिस्टर्स है, तो कोई ना कोई बच्चा हमारे घर में ज़रूर फील करता होगा कि पेरेंट्स जो है हमारे साथ थोड़ा सा अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं. लेकिन धीरे धीरे आवर फियर changes into understanding, and this is the very core of this story. Now we will start the reading, and line by line I shall explain the whole lesson to you. So be patient, be very attentive. Okay. So to the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी सी बच्ची के लिए उसके जो फादर थे वो एक ऐसा फिगर थे जिससे डरा जाता है और जिनको अवॉइड किया जाता है. अवॉइड यानी ध्यान नहीं देना, सॉरी, अवॉइड का मतलब होता है कि थोड़ा सा उनको निगलेक्ट करना, है ना. मान लीजिए वो एक रास्ते से चल रहे तो हम दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे. तो ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. रिमेंबर, कैथरीन मैन्सफील्ड was died in 1923. Okay, so you can easily understand that the story might have been written in the early 19th century.
20th century, okay, in the early 20th century. So आज की कंडीशन से और उस समय की कंडीशन ना, आज जैसे संचार के साधन है, जाना आना ये वो सारी चीज़ें जो है, लेकिन उस ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी. तो कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे आएंगे कि जो आपको थोड़ा सा लग सकता है मॉडर्न एज के नहीं है. जैसे इसमें एक आगे वर्ड आया है, जैसे ये है कैरिएज. अब एक कैरिएज क्या होता है? कैरिएज होता है घोड़ा गाड़ी. तो उस ज़माने घोड़ा गाड़ी चलती थी, ऑफिस से जाते थे लोग किसमें बैठकर? घोड़ा गाड़ी में बैठ के. तो आजकल बसेस से जाते हैं, कार से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, है ना, अपनी खुद की गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं. तो उस समय में कैरिएजेस से जाते थे. तो आप देखिए ये कितनी स्टोरी यूनिवर्सल है. उस ज़माने की स्टोरी आज भी वैसे की वैसे रिलेट होती है. ये बताने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ रही है कि ये 100 साल पहले की स्टोरी है, केजिया की स्टोरी है. नहीं, आज भी केजिया हर घर में आपको नज़र आएगी. आज भी केजिया के फादर हर घर में आपको दिखेंगे. सो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. ही मीन्स फादर. ही मीन्स यहाँ पे फादर. हाँ. देन every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. वो हर रोज़ सुबह केजिया के रूम में आते पापा. ऑफिस जाते समय अब देखिए छोटे बच्चे थोड़ा देर तक सोते हैं, तो वो आते, उसको एक गुड बाय किस करते और ऑफिस निकल जाते. और वो भी पापा को बड़े अच्छे से जो है, जैसे कि इंतज़ार कर रही है पापा के आने का, वो भी पापा को अपने गुड बाय करती. और एंड ओ देयर वॉज a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter. फेंटर का मतलब होता है लेसन, LESSEN, कम हो जाना, कम कम होना. समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा कम होना. तो जैसे इस कैरिएज का आवाज़, घोड़ा गाड़ी का आवाज़, पापा कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जाने लगे हैं, उसका आवाज़ जैसे धीमा धीमा होता जाता है, फेंटर एंड फेंटर होता जाता है, तो कीजिया अपने बेड से उठकर बैठती है डाउन द लॉन्ग रोड. और कीजिया को बड़ा ही अच्छा लगता है उसके पापा जब चले जाते हैं, क्योंकि उसके पापा से वो बहुत डरती है. ठीक, आगे. In the evening, when he came home, she stood near the staircase. She stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम के समय, दिन भर तो बड़ा अच्छे से बीतता है, पापा घर में नहीं है, और शाम के समय जब पापा उसके वापस आते हैं तो पूरे घर में जो एक टेंशन का माहौल आ जाता है. और उनका जोर का आवाज़, क्योंकि थक हार के पापा वापस घर आए हैं, ठीक है, पापा की दहशत है घर में, और जोर का उनका आवाज़ सुनाई देता है. क्या बोलते पापा? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. हैजंट द पेपर कम एट? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. लगातार जो है वो ऑर्डर्स यहाँ पे दे रहे हैं. इस तरीके से जो है पापा का टेरर जो है घर में है. समझ रहे हैं आप? फादर का टेरर. और वो बोलते हैं कि चलो जल्दी से मेरा चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में. पेपर, न्यूज़पेपर नहीं आया क्या? उस ज़माने में देखिए न्यूज़पेपर्स शाम के समय आते थे, है ना, वो रात भर में पब्लिश होते थे, प्रिंट होते थे. समझ रहे हैं आप? और उस समय में संचार के साधन इतने नहीं थे जाने आने के, ठीक है ना. अभी तो अर्ली मॉर्निंग हमको न्यूज़पेपर मिल जाता है. ये मॉडर्न एज का टेक्नोलॉजी कमाल है पूरा. लेकिन उस ज़माने में शाम के समय पेपर आता था. शाम के समय कई जगह तो 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद न्यूज़पेपर पहुँचते थे. फिर मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और 3-4 ऑर्डर एक साथ दे देना. किसी को बोला चाय लेकर आओ, किसी को बोला न्यूज़पेपर लेकर आओ. मदर मतलब अपनी मदर को फादर बोल रहे हैं, मतलब केजिया की ग्रैंड मदर. और किसी को बोल रहे हैं कि मेरे स्लीपर्स लेकर आओ, मेरे जूते उतारना है. तो मदर फिर केजिया को आवाज़ लगाती है. मदर बोलती है, मदर वुड कॉल टू हर
Kezia, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. केजिया की रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, पापा की ड्राइंग रूम इधर नीचे है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे। तो केजिया स्टेयरकेस के ऊपर रुकी है, अभी पापा का सामना नहीं करना चाहती वो, लेकिन मदर ने आवाज़ लगा दिया। क्या आवाज़ लगाया मम्मी ने? कि केजिया नीचे आओ और पापा के शूज़ उतार कर लेकर आओ और उनको स्लीपर पहनाओ, जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और उसको भी लगता है क्या मम्मी ने मुझे काम बता दिया। धीरे 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 जो है वो लड़की नीचे उतरती है अपने स्टेयर्स से, सीढ़ियों से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उसकी स्पीड कम हो जाती है जैसे वो पापा के रूम की तरफ जाती है, हॉल की तरफ जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और दरवाजे को ओपन करती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. बड़ा अच्छे से लिखा है। उतने देर में पापा न्यूज़पेपर पढ़ने लगे हैं, चाय पी रहे हैं। उन्होंने अपना स्पेक्टेकल है ना, जो चश्मा होता है, चश्मा जो है चढ़ा लिया है, और जैसी केजिया आती है, केजिया की तरफ वो इस तरीके से देखते हैं कि केजिया एकदम से डर जाती है। कैसे देखते हैं? चश्मा थोड़ा सा ऐसे नाक के ऊपर नीचे उतार कर चश्मे के ऊपर से जो है उसको देखते हैं। दैट वॉज वेरी मच टेरिफाइंग। होता है ना, कई लोगों की पास की नज़र जो है, पास की नज़र कमज़ोर होती है, कई लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है। तो पास की नज़र जिनकी कमज़ोर होती है तो वो करीब के कोई किसी को देखने के लिए थोड़ा सा चश्मा नीचे उतार लेते। तो ये जो एक्शन है पापा का वो और डरावने लग रहे हैं, न जाने अब क्या बोलते। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Terrifying का मतलब समझ में आया? Terrifying यानी frightening, FRIGHTENI, frightening है ना, डरावना। तो जैसी वो अंदर आती है पापा बोलते हैं, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। केजिया जल्दी आओ, चलो इस शूज़ उतार कर उधर लेकर जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, ऐसा बच्चों को बोलते ना, तुम तो बड़ी अच्छी लड़की हो, चलो जल्दी जल्दी ये काम करो। और जैसी पापा ने सवाल किया, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी लड़की हो ना, आज तुम अच्छी लड़की बनोगी ना, पापा का काम करोगी ना। तो बोलती है, आई डोंट नो फादर, मीन्स शी स्टटर्ड, शी स्टैमर्ड, वो स्टैमर करती है बोलते समय। ओके, आई डोंट नो फादर। और पापा जो है उसकी एकदम कॉपी करते हैं, मिमिक्री करते हैं उसकी। क्या बोलते हैं? यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अरे ऐसे क्यों बात कर रही हो? अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो मदर तुम्हें कहाँ ले जाएगी? डॉक्टर के पास ले जाएगी। ठीक है, ठीक से बोला करो। देखिए आगे की लाइन, सी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, स्टॉप्ड। बचपन में वो थोड़ा हकलाती थी, बचपन में वो थोड़ा स्टैमर करती थी, लेकिन अभी बिल्कुल उसने बंद कर दिया है। बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। लेकिन जब भी कभी वो पापा के सामने आती है तो उसके मुंह से जो है, उसके माउथ से जो वर्ड्स है वो ठीक से बाहर नहीं आते। अब वो वहाँ पर खड़ी है, पापा उसको बोलते, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचेड अबाउट। रेचेड मीन्स अनहैप्पी। देखिए यहाँ पे दिए हैं वर्ड की मीनिंग कुछ, और मैंने यहाँ पर पूरे वर्ड की मीनिंग आपके लिए निकाले। हाँ, यू डोंट वरी। देखिए ये कीजिया हो सकती है, बिल्कुल चुपचाप सी, टेंडर सी, शांत सी लड़की है जो
डरी सहमी सी बैठी है ना। ये पूरे वर्ड के मीनिंग यहाँ पर लिखे हैं। हाँ देखिए, स्टटर का मतलब है ना हकलाना, ये स्टैमरिंग। ओके, तो व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिचर्ड अबाउट मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और एक काम पापा उसको बता देते हैं, पापा उसको बोलते हैं कि यहाँ आओ केजिया, ऐसी क्यों लग रही हो। और केजिया की मम्मी को वो बोलते हैं कि इसको ज़रा ठीक ठाक सिखाओ, हाउ सी इज़ बिहेविंग लाइक सी इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अबे सुसाइड का मतलब यहाँ पे है ऐसे कोई जान देना वगैरह नहीं है। सुसाइड का मतलब है कि ये क्यों अपने आप को बर्बाद करने पे तुली हुई है ना, इतना अच्छा माहौल है इसको, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से बातें सिखाओ। पापा मदर को बोल रहे हैं ना, मदर को दोष दे रहे हैं कि सी इज़ अनेबल टू टीच हर डॉटर ना गुड थिंग्स, मैनरिज्म्स एंड ऑल। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया को पापा बोलते हैं कि मेरा टी कप जो है केयरफुली ले जाओ यहाँ से। अब केजिया क्या सोचती है पापा के बारे में, देखिए क्या सोचती हो। वो सोचती है कि ही वॉज सो बिग, अरे कितना बड़ा व्यक्ति है, ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ देखो, उनकी गर्दन देखो कितनी बड़ी, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही ऑन, और स्पेशली उनका जो मुंह है वो कितना बड़ा है, और तब तो वो और बड़ा हो जाता है जब वो यॉर्निंग करते। यॉर्निंग समझते ना, यॉर्निंग मीन्स जामी देना, यॉर्निंग मीन्स जामी देना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, और अरे भाई ये तो इतना बड़ा आदमी है, देखो इतना ऊंचा पूरा दिखता है, इसके बारे में, इनके बारे में सोचना जैसे जायंट के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, जायंट के बारे में सोचना है। तो इन्हें नटशेल हमें बोल सकते हैं कि अपने पापा को वो एक जायंट मानती है, न सिर्फ शरीर से बट ऑल्सो उनके एक्शन से भी मानती है कि वो एक जायंट है, वो एक राक्षस समान है। आगे ये कुछ वर्ड के मीनिंग है, आप जरूर देख लेना, ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने कर दिया है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। और देखिए इन्वर्टेड कॉमाज में डाला है, यहाँ पे रखा है इन्वर्टेड कॉमाज में। ये ग्रैंड मदर नाइस टॉक, लेकिन क्या उनका नाइस टॉक हो पाता है, हमको इसको देखना है। नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। तो ऑन संडे आफ्टरनून, संडे के समय जब छुट्टी होती है तो ग्रैंड मदर अपनी बेटी ग्रैंड मदर जो है केजिया को बोलते हैं कि बाकी समय तो पापा तुम्हारे बहुत बिजी रहते हैं, तुम्हारा उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तुम्हारी उनसे बात नहीं हो पाती कबीर, नहीं हो पाती। तो वो केजिया को बोलती है उनकी ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर, कि जाओ थोड़ा पापा मम्मी से बातचीत करो, है ना, आज संडे है तो वो भी फ्री होंगे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा विथ हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस। देखिए जैसा बता रहा है बिल्कुल वैसा चित्र यहाँ पे बना हुआ है। फादर को देखता है, चेहरे के ऊपर हैंकरचीफ ले हुई है, ठीक है, रुमाल लिया हुआ है, और जो पैर है इन्होंने पैर के नीचे एक बहुत बेस्ट ऑफ द कुशंस को दबा के रखा है। और मदर क्या कर रही है, मदर आराम से बैठकर मैगजीन पढ़ रही है आज, क्योंकि वो फ्री है। और ग्रैंड मदर क्या बोलती है, जाओ जाओ और मदर फादर से बात करके आओ। किसको टाइम है वहाँ पे, किसी को समय केजिया के लिए नहीं है, ऐसा केजिया भी समझती है। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly
एंड स्नोरिंग, स्लीपिंग साउंडली, आराम से पापा सोए हैं। अब पापा को कौन डिस्टर्ब करेगा, है ना। पापा तो वैसी दहशत, पापा की वैसी दहशत है घर में। और स्नोर भी कर रहे हैं, स्नोर है ना, बोलते हैं ना, खर्राटे भरना, खर्राटे मारना, नींद में मारते हैं ना खर्राटे कई लोग, तो खर्राटे भर रहे हैं और मदर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरीके से इन ए नटशेल हम अगर बोले तो केजिया फाउंड हर सेल्फ निग्लेक्टेड इन हर ओन होम। केजिया को लगता है, एडolescence एज में नॉर्मली यही चीज़ होती है कि केजिया को लगता है कि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उसके प्रति किसी की कोई संवेदना ही नहीं है, नो वन लाइक्स हर एक्सेप्ट हर ग्रैंड मदर, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में है। तो वहाँ पर वो जाती है, सी सैट ऑन ए स्टूल, एक स्टूल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच समझते हैं ना, ऐसे हाथ हिलाना नींद से उठने के बाद, और तब तक वहाँ बैठे रहती है जब तक वो नींद से नहीं जागते। वो जैसी नींद से जागते हैं, एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। देखिए फिर से हमें लाइन पढ़ लेते हैं। सी सैट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। देखिए कितना सुंदर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है दोस्तों यहाँ पे। ये आस्क्ड है ना, ये वर्ड देखो, स्ट्रेच्ड, वोक, आस्क्ड, लुक्ड, है ना। ये सिंपल पास्ट टेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कभी नहीं भूलना हाँ? हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपकी जितनी भी स्टोरीज है, सारी की सारी स्टोरीज जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में ही नॉर्मली होती है। कुछ इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस इफ़ यू लीव यू कैन फाइंड दैट all the stories are written in past tense, okay, simple past tense. So she sat on a stool, gravely watched him, gravely means seriously watched him until he woke and stretched and asked the time. और पापा उठते हैं और उठते बराबर सबसे पहला काम क्या करते हैं, समय पूछते हैं। then looked at her, और उसके बाद कीजिया सामने बैठी है, कीजिया की तरफ देखते हैं। क्या बोलते हैं उठते बराबर, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। आउल समझते हैं ना आप, आउल, ओके, वो रात में उल्लू। तो पापा बोलते हैं ऐसे क्या देख रही हो केजिया, डोंट स्टेयर सो, स्टेयर का मतलब होता है टू लुक कंटिन्यूसली, है ना, घूरना। तो डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। अब ऐसे इनका इंसान के साथ कौन बात करेगा मुझे बताइए, केजिया क्या कंफर्टेबल हो पाएगी, नहीं। वो बोलते हैं कि ऐसे उल्लू जैसी क्यों देख रही हो। तो संडे का जो है पूरा मूड उसका खराब हो जाता है। अब आगे देखिए क्या हुआ। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन उसको थोड़ा सा कुछ फीवर को कफ एंड कोल्ड था, सर्दी वगैरह थी, तो घर ही के अंदर थी वो, और ग्रैंड मदर ने उसको आकर बताया कि अगले हफ्ते पापा का बर्थडे है, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और उसको बताया कि देखो एक काम करो, तुम ज़्यादा पापा के साथ बातचीत नहीं कर पाती हो, तो पापा को एक सरप्राइज़ दो, बड़े वो खुश हो जाएंगे। क्या करो सरप्राइज़, एक पिन कुशन बनाओ, गिफ्ट समझते हैं ना, पिन कुशन, ऐसा इस तरीके का पिन कुशन, इसके अंदर कुछ ऐसा फिर भरते हैं, है ना, बच्चे बना सकते हैं इसको। तो एक पिन कुशन बनाओ पापा के लिए, छोटा सा गिफ्ट फॉर ए गिफ्ट, और आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और वो येलो सिल्क, सिल्क का कपड़ा जो है
ग्रैंड मदर ने उसको दे दिया। फिर देखिए आगे क्या हुआ। लेबोरियसली, विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, विथ अ लॉट ऑफ लेबर, ठीक है ना, लेबोरियसली, बहुत लेबोरियसली उसने क्या किया, विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड। देखिए स्टिच्ड, सिलना, स्टिच का मतलब होता है सिलना, हाथ से सिलना, स्टिचिंग, ठीक है। बट व्हाट टू फिल इट विथ, 3 साइड उसने सिल लिया, फिर एक साइड ओपन रखी, एक साइड ओपन रखी तो उसके अंदर कुछ रखना है ना अंदर। अब छोटी बच्ची है, अब देखिए क्या होता है। दैट वॉज द क्वेश्चन, बट व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। ग्रैंड मदर भी घर में नहीं थी, क्योंकि वो इसको येलो सिल्क का कपड़ा दे के चली गई। वो ग्रैंड मदर कहाँ चली गई, गार्डन में है, बाहर है, और उसको बताया गया है कि वो घर के बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि उसको सर्दी है। एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और ढूंढते 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 कि इसके अंदर क्या रखना है, इसके अंदर क्या रखना है, इसके अंदर क्या रखना है, ढूंढते ढूंढते वो कहाँ चली गई, मदर फादर के बेडरूम में चली गई, टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स है ना, टुकड़े, कुछ भी टुकड़े, कागज के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, पीसेस ऑफ क्लोथ, पीसेस ऑफ पेपर, कुछ भी उसके अंदर रखेगी, और तीसरी साइड जो है वो सिल लेगी। इस तरीके से पापा के लिए गिफ्ट बन जाएगा। सामने नाम वाम लिख देगी पापा का, है ना, टू माय डियर पापा, हैप्पी बर्थडे, ऐसा ऐसा कुछ जो है। तो क्या है, एक साइड ओपन है और एक साइड, ये तो पूरी साइड उसने अच्छे से सिल ली, ठीक है। एक साइड ओपन है, उसमें कुछ रखना है। अब देखिए क्या होता है। वो मदर के बेडरूम में गई, मदर, और मदर मतलब मदर फादर के बेडरूम में गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और वहां पे जो है उसको क्या नजर आया, कुछ फाइन पेपर नजर आए, कुछ लिखे हुए पेपर्स नजर आए। अब उसको क्या पता ये पेपर्स इम्पोर्टेंट है या नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या होने वाला है। सी गैदर्ड देम अप, देखिए फिर से एक बार बहुत सुंदर पास्ट टेंस, सी गैदर्ड देम। गैदर का मतलब होता है एकत्रित करना। इसी तरीके से एक वर्ड बनता है गैदरिंग। गैदरिंग यानी भीड़ भाड़, एक जगह सब लोग जमा हो जाना। गैदर्ड देम अप, उसने सारे के सारे पेपर्स कलेक्ट किए बिना सोचे समझे। ये पेपर किसके है, क्या है, काम के है, काम के नहीं है, ठीक। टोर देम इनटू टीनी पीसेस। देखिए आगे आगे चलकर क्या काम किया उसने। टोर, टीयर का पास्ट टेंस, टीयर है ने टू सेपरेट, फाड़ देना, टीयर का पास्ट टेंस है। टीनी पीसेस में फाड़ दिया। टीनी पीसेस का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस। टीनी मीन्स स्मॉलेस्ट, स्मॉल। और उस पेजेस को फाइन पेपर के ऊपर, फाइन पेपर के जो पेजेस थे, ठीक है, वो उसको जो है पूरा छोटे छोटे पीसेस कर दिए। एंड स्टफ्ड हर केस, और वो जो एक बाकी था ना, इसके अंदर पूरे वो टुकड़े 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 भर दिए। एंड स्टफ्ड हर केस, पूरा केस भर दिया। एंड देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद क्या कर दिया, चौथी साइड को भी सिल लिया। और यहां से जो है, हियर वेयर दी प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अब देखिए क्या हुआ। दैट नाइट, ये तो शाम के समय की बात है। उस रात क्या हुआ। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई, एंग्री प्रोटेस्ट, हल्ला, भीड़ भाड़, हल्ला, है ना, चिल्लाना, उसको बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। उस रात घर में बहुत हल्ला सुनाई दिया। क्या हुआ है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर का स्पीच नहीं नजर आ रहा है। फादर ने 4-5 फाइन पेपर पर लिखकर एक स्पीच रखा था पोर्ट अथॉरिटी में देने के लिए। पोर्ट अथॉरिटी कोई वहाँ की संस्था होगी, समझ रहे ना, और वहाँ पे देने के लिए उन्होंने स्पीच लिख कर रखा था, ठीक है, या किसी से लिखवा लिया था, जो भी है। वो स्पीच नहीं मिल रहा है। दूसरे दिन सुबह स्पीच देना है उनको।
अब आप समझ सकते हो स्पीच कहाँ गया, क्या हुआ है स्पीच के साथ, कितना बुरा व्यवहार उस स्पीच के साथ हुआ है. यू कैन अंडरस्टैंड. ओके. Father's great speech for the fourth authority had been lost. This is the passive form of, see, had been lost. Passive form of past perfect tense. Okay. Rooms were searched. रूम्स को में ढूंढा गया, सारे के सारे रूम्स को सर्च कर लिया गया. पापा का स्पीच कहाँ गया, स्पीच कहाँ गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, सारे नौकरों को सवाल पूछे गए. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. और किसी को लगा नहीं था कि केजिया के पास वो हो सकते हैं. फाइनली चलो भाई एक बार पूछ लेते केजिया से भी. केजिया तो बेडरूम में नहीं आई होगी. केजिया से पूछ लिया मदर ने. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम. वो बोलती है मम्मी, केजिया मुझे पूरा विश्वास है, मैं ये मानती हूँ कि तुम हमारे रूम में नहीं आई होंगी और तुमको किसी प्रकार के कोई पेपर्स नज़र नहीं आए होंगे, है ना. वो कहती है ओ यस, सी सेड, सी मीन्स केजिया. वो नहीं नहीं मम्मी, मुझे तो मिले वो पेपर. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. और मैंने तो उनको पूरा फाड़ दिया. टीयर का पास्ट टेंस टोर, समझ रहे हैं आप. मैंने तो उनको पूरा फाड़ दिया. किस लिए, पापा को मुझे सरप्राइज देना था. व्हाट, स्क्रीम्ड मदर. मदर जोर से चिल्लाई. क्या. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम एट दिस इंस्टेंट. इंस्टेंट मीन्स अभी के अभी. चलो अभी के अभी नीचे. अब कल्प्रिट मिल गया. पूरे रूम को सर्च किया जा रहा था. जो है सर्वेंट्स को क्वेश्चन किए जा रहे थे, सबको पूछा जा रहा था. आखिर में कल्प्रिट मिल गया. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू फेयर. फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो समझते हैं ना, अप एंड डाउन उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो. इस तरीके से आगे पीछे घूमना, टू एंड फ्रो. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. पापा के हाथ पीछे थे. ओके. वेल, ही सेड शार्पली एंड मदर एक्सप्लेन द होल थिंग. अब आप समझ रहे हैं मदर ने क्या एक्सप्लेन किया होगा. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. उनको तो इतना गुस्सा आया पापा को, लेकिन फिर भी वो रुके और बच्चे की तरफ. उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि केजिया ने ये कुछ किया है. और उन्होंने पूछा, डिड यू डू दैट केजिया. मीन्स केजिया, क्या तुमने सचमुच में किया है. डिड यू डू दैट. नो 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 नो, सी विस्पर्ड. केजिया बोलती है नो नो पापा. नो मीन्स आई डिड दैट, बट प्लीज डोंट गेट अपसेट. आई शैल टेल यू व्हाई आई डिड दैट. तो इस तरीके से कुछ वो बोलना चाह रही है मदर. तो पापा ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लिया और उन्होंने बोला, मदर गो अप टू अ रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. मदर मतलब मम्मी को बोलते हैं अपने कि जल्दी से जाओ इसके रूम में और वो लेकर आओ. क्या बोल रही है तो ये, सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और इसको मेरे नज़र के सामने से अभी के अभी ले जाओ और इसको जो है जाकर सुला दो. फिर केजिया को ले जाया गया ऊपर. ठीक, ये वर्ड के मीनिंग थोड़ा देख लेना. केजिया को सनो हाँ, केजिया को जो है रूम में ले जाया गया और उसको जो है वहाँ पर सुला दिया गया. समझ रहे ना, या सोने के लिए बोल दिया गया. और वो जो चीज़ उसने बनाई थी उसको नीचे ला दिया गया. अब जैसी वो चीज़ को नीचे लाया,
पापा का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने देखा उसके स्पीच को जो है केजिया ने पूरा जो है टीयर डाउन कर दिया था, फाड़ दिया था। तो दो तीन चीज़ें पापा के मन में आई, फादर के मन में आई। वो ये कि पहली बात तो इनसे बिना पूछे वो उनके बेडरूम में गई, और इतना ही नहीं, उसने उस चीज़ को छुआ और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको खराब कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में आई होगी। Crying too much to explain, she lay in a shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. पूरे घर का एटमॉस्फेयर जो है बड़ा टेंशन वाला था, बड़ा दुखी एटमॉस्फेयर था। पापा ने जो है माहौल को एकदम जो है गमगीन भयानक बना दिया था, क्योंकि पापा जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और वो अपसेट हो जाए घर में तो पूरा का पूरा माहौल जो है घर का एकदम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पे पोएट ने की है कि केजिया अपने रूम में गई, तो केजिया जब अपने रूम में गई वो बड़ी अपसेट थी, और वहाँ का जो उसके रूम का जो छोटा सा लाइट था वो भी जो है बड़ा सैड लिटिल पैटर्न जो है फ्लोर के ऊपर, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी बड़ा ऐसा लग रहा था कि वो लाइट का प्रकाश भी बड़ा सैड लुक जो है धारण किए हुए है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद फादर केम इनटू द रूम विथ रूलर इन हिज हैंड। उसके बाद फादर केजिया के रूम में आए और उनके हाथ में क्या था, एक रूलर था। समझते हैं आप, रूलर समझते हैं ना, जिससे मारते हैं, ऐसा गोल ऐसा रूलर होता है। टीचर्स वगैरह यूज करते हैं इसको, पुराने ज़माने में यूज करते थे, आजकल तो नहीं। पापा जैसे आए उन्होंने कहा, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, तुमने ऐसा कार्य किया है, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। ओ नो 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 नो, सी स्क्रीम्ड, केजिया जोर से चिल्लाई, नो 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 फादर, प्लीज प्लीज लिसन टू मी, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। और बेचारी छोटी सी लड़की छिपने लगी बेड क्लोथ के अंदर, अपने छोटे से बेड के अंदर छिपने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, और उन्होंने जो है उसके ऊपर के जो भी वो बेडशीट वगैरह थी उसको हटाया। सिट अप, ही ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर दिया कि ठीक से बैठो, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। पापा बोलते हैं कि तुमको ये सिखाना जरूर पड़ेगा, क्या, कि जो तुम्हारा नहीं है और जिस चीज को छूने की तुमको परमिशन नहीं है उसे तुमको टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे पापा। केजिया बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि पापा इट वॉज फॉर योर बर्थडे, अरे ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था। बट पापा डिडंट लिसन, पापा ने बिल्कुल नहीं सुनाई उसकी बात, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे। डाउन केम द रूलर ऑन अर लिटिल पिंक पाम्स, पाम का मतलब होता है हथेली, पाम मीन्स हथेली, और पापा ने जो है केजिया के हाथों के ऊपर रूलर की बौछार कर दी और उसको मारा। फिर क्या हुआ, और लेटर, कई घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों के बाद, थोड़ी देर के बाद ग्रैंड मदर आई, है ना। ग्रैंड मदर ने उसको अपनी शॉल में ओढ़ लिया, फिर उसको अपने रॉकिंग चेयर होती है ना, वो बूढ़े लोग जो बैठते हैं, आराम कुर्सी जिसको बोलते हैं, रॉकिंग चेयर के ऊपर ले गई और बच्ची को जो है अपने सीने से लगा लिया। तो जैसी लिटिल गर्ल जो केजिया है, वो दादी ने उसको अपने पास ले लिया केजिया को, वो उसके बॉडी को एकदम चिपक गई और रोते रोते मम्मी को बोलने लगी, दादी को बोलने लगी, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। देखिए क्या बोल रही है, कितना भयानक स्टेटमेंट है ये। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी की,
कि जो उनकी जो एक्शंस है, गुस्से में उन्होंने ये किया, ये सारी चीज़ें। वो बोलती है कि भगवान फादर्स को क्यों बनाते हैं? बच्चों को मारने के लिए, बच्चों को पीटने के लिए? ग्रैंड मदर भी जो है उसको कंसोल नहीं कर पाती और बोलती है, हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। ये रुमाल ले लो खिजिया, अपना नाक वगैरह ठीक कर लो। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। तुम इसके बारे में सुबह तक सब भूल जाओगी, डोंट वरी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और वो केजिया को बोलती है कि केजिया अब तुम सो जाओ, ठीक, केजिया अब तुम सो जाओ, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। लेकिन आगे देखिए, बट द लिटिल चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन वो बच्ची बात को नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने पापा को देखती तो वो जो है अपने हाथों को पीछे कर लेती। और उसका जो डर था, पहले तो पापा से डरती थी, लेकिन उसका ये जो डर था अभी और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो जब भी कभी अपने पापा को देखती, अपने हाथ जो है पीछे कर लेती और एक अजीब कलर का रेड, उसके चिक्स जो है पूरे रेड हो जाते, एकदम से वो डर जाती। अब देखिए अब आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे की स्टोरी हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। एक मैकडोनाल्ड फैमिली के बारे में आगे बताया गया है, तो कल हम इस आगे की स्टोरी को कल इसको फिनिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। सो हैव ए नाइस डे।